Myself is Seema Chadha, Deputy Director of Muskaan. On behalf of Muskaan team, I would like to express thanks to all our esteemed guests for joining in with us this important occasion when Muskaan is celebrating the completion of 40 years. Today, we would also be inaugurating Diwali Bazaar, which is an annual event of Muskaan to celebrate the skills and capacities of Muskaan students. Muskaan students, when we say, they represent the other people with intellectual disabilities too. As you all know, Muskaan is an association of parents and professionals working for the empowerment of persons with intellectual disability. It got officially registered in November 1982. However, the parents and doctors from AIMS were often meeting Dr. I.C. Verma's office almost 1 year before that. We welcome you all on this important occasion. Now, I invite Ms. Neera Chawla, Director of Muskaan, to welcome our distinguished guests. Neera ji joined Muskaan in 1993 and assumed the role of Director in 2017. Neera ji. Thank you, Seema. सबको नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत। सीमा ने आज के ओकेजन के बारे में आप सबको बता ही दिया है। सो हम यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और ख़ास तौर से मैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज उनका स्वागत करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर विनीता अग्रवाल। डॉक्टर विनीता अग्रवाल is the Executive Member, National Council for Vocational Education and Training. ये काउंसिल जो है, this is an overarching organization which has been set up in 2018. This council has been set up in 2018 to regulate standards and regulations in the space of vocational education and skill training. So you can understand how important her presence is for Muskaan. So prior to this, she was Director General, National Skill Development Agency and Senior Economic Advisor in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. She joined Indian Economic Service in the year 1985. She has a wide range of experience in formulation of legislation, undertaking economic analysis, and rendering advice for designing and formulating developmental policies, and strengthening delivery systems and monitoring and evaluation of public programs. We extend a very hearty welcome to you, ma'am. Our another honored guest is Professor I.C. Verma. We want to regret this disturbance which will keep coming in the program, and we have no control over this because this space falls in the track of the airspace. So Professor I.C. Verma has served in AIMS, New Delhi for 30 years and retired as Professor of Pediatrics and Genetics in 1996. He established the WHO Collaborating Center for Genetics in AIMS, New Delhi, the only one in Asia at that time. In 1997, he set up the Genetics Center in Sir Gangaram Hospital, which rapidly developed as a key facility for providing services to patients with genetic disorders in India. He is currently advisor to the Institute of Medical Genetics and Genomics at Sir Gangaram Hospital. He has carried out extensive research and has been associated with many medical academies. And he has also received many national honors. Dr. Verma
का हमारे हृदय में एक स्पेशल स्थान है, because Dr. Verma is also one of the founding members of Muskaan Parents Association since 1982. He is the one who inspired and guided parents to come together and create required services. And for many years, मुस्कान का जो ऑफिस था वो डॉक्टर वर्मा के ऑफिस से ऑपरेट होता था और डॉक्टर वर्मा सारी फैसिलिटीज हमें एक्सटेंड करते थे, इंक्लूडिंग कि कोई भी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए हमें एम्स का ऑडिटोरियम, एम्स के कॉन्फ्रेंस हॉल वो फैसिलिटेट कराते थे। सो डॉक्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मुस्कान। Another guest of honor is Mrs. Sheeta Nair. Mrs. Sheeta Nair is the Vice President Monitoring, Evaluation and Learning in National Skill Development Corporation. Mrs. Nair has more than 2 decades of experience in the social development sector and has worked with NGOs, multilateral agencies and various government ministries too. Her areas of expertise include program management, monitoring and evaluation, government relations, stakeholder management and capacity building. She has worked on health, livelihoods, skilling, anti-trafficking, women's empowerment, gender and social entrepreneurship. शीजा जी, आपका भी आज के प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, so we really welcome you. Last but not the least, हमारे special friend and our guest of honor, Mr. Ravinder Singh. Ravinder ji has a rich experience of over 28 years in corporate and skill development sector in India. He is the CEO of Skill Council for Persons with Disability, which is specially constituted to look after the skill training of persons with disabilities. In the past, Mr. Singh has led many skill councils of National Skill Development Council. Mr. Singh is the certified CSR professional from Indian Institute of Corporate Affairs and has worked closely with several corporates on their CSR initiatives. We will extend a very warm welcome to Ravinder ji also. इसके साथ ही मैं हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर शांति औलख, हमारी प्रेसिडेंट मिसेस शालिनी सिन्हा एंड यहाँ उपस्थित सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का भी स्वागत करती हूँ एंड हमारे सब डोनर्स जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे वेल विशर्स, फ्रेंड्स, वॉलंटियर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आज ये कार्यक्रम हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाया जा रहा है, तो जो भी लोग उसके थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और ये लोग इंडिया, यूएस, कनाडा एंड बाकी कंट्रीज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक और मुस्कान की जर्नी का माइलस्टोन मार्क करने के लिए, दैट इज कंप्लीशन ऑफ 40 इयर्स ऑफ मुस्कान पेरेंट्स एसोसिएशन। मुस्कान की स्टोरी यूनिक तो नहीं है, बट उसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं विच इंक्लूड हार्ड वर्क, सिंसियर कमिटमेंट्स, ब्रेकिंग मिथ्स, रियलाइजिंग कैपेसिटीज, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट ऑफ मुस्कान स्टूडेंट्स, टीचर्स, parents, volunteers and executive members, unwavering trust and support of community and continuous grace of Almighty. आज जब हम मुड़ के पीछे देखते हैं तो we realize that today's achievements are yesterday's impossibilities. They seem to be impossibilities, लेकिन मुस्कान टीम ने उनको possible बनाया है। एक saying है, lovely thing to learn from water is adjust yourself in every situation and in any shape, but most importantly, find your own way to flow. तो मुस्कान ने हमेशा इसी अप्रोच को अपनाया है और अपने सब कार्यक्रमों को उसी से संबंधित रखा है। हम हमेशा अपनी सेलिब्रेशंस को
इस तरह से प्लान करते हैं कि हमारा आउटरीच कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज जिनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है वो हमसे जुड़ सके। इसीलिए हमने आज का भी ये ओकेजन जो है अपने दिवाली उत्सव के साथ कंबाइन किया है, क्योंकि दिवाली का ये जो उत्सव हम मनाते हैं पूरा 1 महीना, उसके थ्रू साल भर के पूरे हमारे आउटरीच का जो ऑलमोस्ट 70% होता है वो इस समय हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, और वो पहुंच पाते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बनाए हुए खूबसूरत क्वालिटी प्रोडक्ट्स के थ्रू। दिवाली मुस्कान में सबके दिलों में एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ओकेजन है जो हमें सबको ही इंक्लूडिंग आवर स्टूडेंट्स हमारी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने का मौका देता है और सोसाइटी में फैले हुए मिथ्स को भी ब्रेक करने का मौका देता है। भारतीय सभ्यता में किसी भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन को शुरू करने से पहले दिया जलाने की प्रथा है, तो आज उसी प्रथा को कायम रखते हुए हम दिया प्रज्वलित करने के लिए अपने खास मेहमानों को आमंत्रित करना चाहेंगे। सो डॉक्टर विनीता अग्रवाल, डॉक्टर IC वर्मा, मिसेस शीजा नायर, मिस्टर रविंदर सिंह, Dr. Shanti Olak and our President, Mrs. Shalini Sinha, please join us in lighting the lamp. Nuthan ji. Om Asatoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Om Mrityunjaya Amritam Gamaya Om Shanti 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 Vakratundya Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Lighting of lamp is symbolic. It creates brightness and enlightens our soul and mind. तो आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे म्यूजिक क्लब के स्टूडेंट्स, जो वसंत कुंज और सैटेलाइट सेंटर्स मयूर विहार और ईस्ट दिल्ली से आपके सामने इस प्रार्थना को करेंगे। We pray to Lord Ganesha to bless us for performing our responsibilities with great enthusiasm and energy that brings out best in us. Om
यू। बहुत सुंदर प्रार्थना। आप देख रहे हैं मुस्कान। थैंक यू। मुस्कान इसके अलावा भी जो भी हमारे साथियों के हुनर हैं, चाहे वो सॉन्ग है, सिंगिंग है, डांस है या फोटोग्राफी है, उन सब में उनको तो मैं आपसे बता रही थी कि मुस्कान में लाइफ स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा हर अपने फ्रेंड्स के बारे में उनको जो भी उनकी हॉबी है, चाहे सिंगिंग है, चाहे डांसिंग है, चाहे फोटोग्राफी है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। उसका एक स्वरूप आपने अभी देखा। अब आपके बीच में आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स एंड स्टाफ जो प्रेजेंट कर रहे हैं पंचकोश, अ डांस परफॉर्मेंस। मैं मिस चित्रा राजगोपालन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ आगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे हम सबको। Today we are presenting Panchkosha. Can you hear me? Yeah. We are presenting Panchakosha, a model used in the Taittiriya Upanishad to explain the nature of man. Panchkosha refers to the 5 layers of human personality, where the outermost layer is called the Annamaya Kosha, followed by Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and the most subtle, innermost layer, Anandamaya Kosha. Beyond these 5 koshas is the supreme truth that the Taittiriya Upanishad declares as Satyam, Jnanam, Anantam, Brahman. Satyam means changeless, Jnanam is the source of all cognition and knowledge, and Anantam is limitless. That there is nothing separate from Brahman is the most profound discovery of the rishis of India. The supreme truth was ascertained by saints and sages in all times, like Jagadguru Adi Shankara, Ramana Maharishi, Swami Ramakrishna Paramahamsa, and Swami Vivekananda. Isha Vasya Idam Sarvam, Yad Kinch Jagatyam Jagat, meaning everything is permeated with Brahman alone, is the loud and clear message in the Upanishads. Our dear students at Muskaan provide us an opportunity to question our assumptions and conventional ways of thinking. They are blessed with the capacity for unconditional love, joy, and purity. They are away from egoistic trappings, and they prompt us to think beyond disability and appreciate the diversity of mankind. Making this shift in our thinking has the potential to transform all our lives in unimaginable ways. The students and teachers of Muskaan will now present Panchakosha in the form of music, dance, movement, abhinaya, and an audio-visual presentation. Thank you. कल्पिमानि भूतानि जायन्ते
देवताओं की ओर संकेत करता है। समस्त सृष्टि और मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से बना है और अन्न से बराबर पोषण प्राणमय कोश। हम प्रकृति के 2 रूप देखते हैं, जड़ व चेतन। चेतन रूप प्रकृति प्राण और लाइफ एनर्जी से परिपूर्ण है। प्रकृति की अद्भुत रचना है मन, और मनुष्य उसके शिखर पर है। मन अपने विचारों, भावनाओं व आकांक्षाओं द्वारा जीवन में तरह तरह के रंग भरता है। विज्ञानमय कोश। केवल मनुष्य मात्र में हम ज्ञान शक्ति का संचार देखते हैं।
इसके सही उपयोग से हम जीवन को सुंदर व स्वस्थ बना सकते हैं। विवेकशील व्यक्ति स्वयं व समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। प्रत्येक प्राणी और विशेषकर हर मनुष्य का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति और दुखों से मुक्ति। यह मूलभूत प्रेरणा हमारे जीवन को सदैव संचालित करती रहती है। इन सबसे परे एक और सत्य है जिसे ऋषियों ने ब्रह्मन कहा है। इसको पाकर मनुष्य सब बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने इसको निर्वाण कहा है और उपनिषदों में इसको मोक्ष कहा गया है। थैंक यू इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू ऑल द परफॉर्मर्स, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि हमने बताया, मुस्कान में हम सभी हुनर पे बहुत ध्यान देते हैं, उनको तराशने की मौका देते हैं। तो हमारे मुस्कान पे हमारे स्टूडेंट्स एज ए सेल्फ एडवोकेट डेवलप होते हैं। तो अब आपके बीच में 3 सेल्फ एडवोकेट्स आपके साथ में बातचीत करने वाले हैं। इसके लिए मैं मिस नीरा चावला को इनवाइट करूंगी। वो मुस्कान के प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताएंगे और सेल्फ एडवोकेट्स के साथ में फैसिलिटेट करेंगे। वो आपको अपनी इच्छाओं, अपना काम और अपनी एस्पिरेशंस के बारे में शेयर करेंगे।
Over to Neeraj. सॉरी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मिसिस परमार जी का मोबाइल कहीं छूट गया है। अगर किसी को मिला हो या देखा हो तो कृपया यहाँ पर हमें स्टेज पे दे दें। थैंक यू। once again. आज हम अपने ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के कुछ ग्लिम्पसेस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक पैनल डिस्कशन की फॉर्म में। Muskaan has been a pioneer in starting vocational training and employment opportunities for people with varying ability levels. बहुत शुरू से ही हमारा फोकस जो था वो एडल्टहुड के ऊपर था और हमने जिम्मेवारी ली कि पूरे लाइफ स्पैन को किस तरह से केटर किया जाए, लाइफ स्पैन की नीड्स को किस तरह से केटर किया जाए, तो उसके अराउंड हमने अपने सारे प्रोग्राम्स इन्वॉल्व किए। जब हमने शुरुआत की थी 1982 में, उस समय हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख के हम कहें कि अच्छा ये करना होगा और ऐसे करना होगा। तो हमारी टीम ने रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा सारे ट्रेनिंग करिकुलम्स, मेथडोलॉजीज, असेसमेंट प्रोसीजर्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किस तरह के होने चाहिए, ये सब इवॉल्व किए और इसके साथ ही 3 एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स क्रिएट किए ताकि हर एक एबिलिटी लेवल के व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आज हम तैयार हैं और हम बहुत पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे और एनजीओस को, पेरेंट्स ग्रुप को और ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपना करिकुलम भी उनसे शेयर करते हैं ताकि सबको रीइन्वेंट ना करना पड़े। एंड इसमें कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं। मुस्कान बिलीव्स इन डाइवर्सिटी मोर देन डिसेबिलिटी और हम हर एक ह्यूमन बीइंग की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं और उनके ह्यूमन राइट्स की भी इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत वर्षों से पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड प्रोफेशनल्स उनके राइट्स के लिए एडवोकेसी करते रहे, पर मुस्कान ने एक जिम्मेवारी और उठाई कि हम अपने फ्रेंड्स को ही तैयार करेंगे टू बी देयर ओन एडवोकेट्स। और दिस मीन्स गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर चॉइस मेकिंग, फॉर सिंपल डिसीजन मेकिंग्स एंड प्रेजेंटिंग देयर वॉइस टू द वर्ल्ड। सो आज इस पैनल डिस्कशन के थ्रू हमारे 3 सेल्फ एडवोकेट्स अपनी जर्नी तो कुछ हद तक शेयर करेंगे बट अपने बाकी फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ मेरे फ्रेंड्स को, मिस्टर अर्पित जैन, मिस ईशना कपूर, मिस्टर अनुराग मौर्य जो मुझे मेरा साथ देंगी इस पैनल डिस्कशन में। सो सबसे पहले हम अर्पित से बात करते हैं। सो अर्पित, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ऑडियंस के लिए। जैसा कि नीरा मैम ने कहा है, वी बिलीव इन डाइवर्सिटी वे मोर देन डिसेबिलिटी। इसी के साथ मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ। मेरा नाम अर्पित जैन है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं यहाँ मुस्कान में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 10th तक रेगुलर स्कूलिंग में पढ़ाई करता था और 12th में NIOS से, और फिर उसके बाद मैंने जापानीज़ का कोर्स करा, फिर मैंने एनिमेशन का कोर्स करा है और अभी मैंने कंप्यूटर का कोर्स करा है। एक तक सब ठीक था पर 9 से टफ होने लगा सब कुछ। तो कैसे टफ होने लगा?
क्या मुश्किल आती थी? बहुत सारा सिलेबस आता था। बहुत सारा सिलेबस होता था, हाँ जी तो मैम। उसको समझने में दिक्कत होती थी या याद करने में दिक्कत होती थी? लर्निंग में मैम। लर्निंग में दिक्कत होती थी। ओके, सो अर्पित, आप कुछ समय से मुस्कान में अपनी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपने क्या बदलाव देखा है स्कूल एजुकेशन में, जिस तरह से सिखाया जाता है या जैसे मुस्कान में सिखाया जाता है, कोई फर्क है उसमें? स्कूल में तो किताबी शिक्षा के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती थी, मगर यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो थोड़ा सा बताएंगे कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है? जैसे कि F&B यूनिट में सविता नहीं नोएना मैम ने हमें ये सब बताया है कि सैल्वर कैसे पकड़ना होता है लेफ्ट हैंड से, और उसको गिराना, और अगर वो ना गिरे तो हमें उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सो दैट मीन्स करके सीखते हैं। यस मैम। ओके, तो अर्पित, आप बताएंगे कि फिर एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए सीखने में? ऐसे सिखाना चाहिए कि घास हरे रंग की क्यों होती है, सॉइल जो मिट्टी होती है वो घेरे हुए ब्राउन रंग की क्यों होती है। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू अगर एजुकेशन दी जाए तो सबको सीखना आसान होगा। यस मैम। ओके, अर्पित, आपके दोस्त हैं मुस्कान में? यस मैम, there are so many friends here. ओके, और मुस्कान के बाहर भी आपके दोस्त हैं? No मैम। कोई दोस्त नहीं है मुस्कान? No मैम। तो ऑडियंस के लिए मैसेज देना चाहेंगे अर्पित? Education can move beyond textbooks and classrooms. Thank you so much. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे सबको। मैं 29 years की हूँ। I was born and brought up in Bombay। और मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई थी, NIS के थ्रू। और उसके बाद मैंने बॉम्बे में एक कॉलेज में कोर्स किया SAT में। मैंने वहाँ पे 2 कोर्सेज किए, एक होम साइंस का और एक मास कम्युनिकेशन का। फिर जब हम दिल्ली आए तो यहाँ पे भी SVT कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया था ऑफिस मैनेजमेंट का, 2 years का। फिर उसकी हेल्प से मुझे नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड गवर्नमेंट में जॉब मिली, तो वहाँ भी मैं 2 साल के लिए डेटा एंट्री का काम कर रहा था। और अब फिलहाल मैं मुस्कान आया हूँ अपनी फूड एंड बेवरेज के यूनिट में ट्रेनिंग लेने में। ओके कृष्णा, तो आप अपनी F&B ट्रेनिंग के बारे में सबको बताइए। बहुत एक्सपीरियंस रहा है। सविता मैम और नोएना मैम बहुत अच्छी टीचर्स हैं। हमें बहुत पेशेंटली, आराम से, प्यार से समझाती है जब कभी भी कोई दिक्कत आती है। अदरवाइज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए जो भी ज़रूरी और नेसेसरी है वो हमें सिखाया जा रहा है बेसिकली। ओके, तो इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग कहाँ प्लेस होते हैं? इस ट्रेनिंग के बाद हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्लेस होते हैं। हमारे कई दोस्त अलग अलग जगहों में ऑलरेडी प्लेस्ड है। कुछ आइनॉक्स में है, कुछ मैक्वेरी बैंक में है, कुछ लेमन ट्री होटल्स में है। काफ़ी सारी जगह ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। ओके, तो आपको टोटल प्लेसमेंट्स पता है कि कितनी है स्टूडेंट्स की? जी, टोटल प्लेसमेंट्स अराउंड 33 है। ओके, आई थिंक यू आर मिस्टेकिंग इट हियर, इट्स 66। नंबर्स में बचपन से मैच में हमेशा थोड़ा वीक रहा हूँ। सो ट्रेनिंग के अलावा आपने मुस्कान में और कौन कौन सी चीज़ें देखी? बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं यहाँ पे। F&B यूनिट के अलावा यहाँ स्टेशनरी यूनिट है, यहाँ पे फिजिकल यूनिट है, यहाँ मसाला यूनिट है, बेकरी यूनिट है, और हमें हर यूनिट में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस दिया गया था। ओके, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हियर? आई हैव फ्रेंड्स ओवर हियर। मेरे पहले वाले ग्रुप में तो अर्पित, आर्यन है, और F&B के बहुत सारे दोस्त हैं। और क्योंकि मैं हमेशा बचपन से अकेला रहा हूँ तो यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, एक मृदुला मैम का और एक नीरा मैम का, तो वो भी मेरे दोस्त हैं। और आज ही मैं निखिल सर के डॉग से मिला तो मेरा एक और दोस्त है। ओके, सो अगर आपको अपने एक आइडियल वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस के बारे में अगर आपको सोचना हो तो व्हाट
should that be like? मुझे लगता है वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेशन से, प्यार से, हंस के, मिलजुल के काम करें और एक दूसरे का साथ में एक टीम वर्क की तरह काम करें, which will be great. Okay, thank you so much. But in the end, I would like कि आप अगर आपके पास कोई मैसेज है पूरी ऑडियंस के लिए, so you can give it. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिंदगी में हम चाहे जो भी करें दिल से करना चाहिए, क्योंकि दिल भले ही लेफ्ट में हो लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं. Thank you. हाँ, एक आपके पास है. So, अब मैं अपने दोस्त के पास चलती हूँ, अनुराग मौर्य. So, अनुराग, आप कहाँ काम करते हैं? कैंडल यूनिट, कैंडल कैंडल एंड दिया यूनिट. कैंडल दिया को पहले गीला करो, उसके बाद सुखाओ, फिर उसके बाद पानी वाला कलर होता है, उसमें ग्रीन होता है, ब्लू होता है, लाल होता है, उसको भी सुखाया जाता है. ये कौन सा कलर है अनुराग? ये वाइट है. वाइट है. तो सबसे पहले वाइट करते हैं. हाँ, ओके. फिर उसके बाद पीला करते हैं. ओके. तो पीला, हरा या लाल भी? हाँ, करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद गोल्डन करते हैं. जरा सबको दिखाएंगे गोल्डन. ओके. सो इतना सुंदर गोल्डन करते हैं. हाँ, ओके. फिर बेटर है. तो ये सब बोलते हैं ये बेटर करता है. ये बेटर करता है. ये अनुराग बहुत बढ़िया करता है, बेस्ट करता है. पूरा मुस्कान करता है, सब बोलता है. मैं तो आर्टिस्ट बोलती हूँ अनुराग को, है ना? अनुराग इज एन आर्टिस्ट. हाँ. यस. सो अनुराग, उसके बाद गोल्डन कलर करने के बाद क्या करते हैं? उसके बाद गत्ते पे चिपकाते हैं. ओके. फिर उसके बाद पैक करते हैं. पैक करने के लिए क्या क्या करते हैं? पहले क्या डालते हैं? टी लाइट. ओके. फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? स्टिकर, मुस्कान का स्टिकर, 40 का स्टिकर. ओके. सो 40 इयर्स का भी स्टिकर लगा रहे हैं आप? हाँ, ये वेरी गुड. 40 का मतलब 40 साल हो गए. सो है. यस. हाँ, वेरी गुड अनुराग. ये सोच के लगाता हूँ कि 40 साल हो गए. थैंक यू. तो और 7 स्टेप्स. हाँ. ओके. तो थोड़ा सा आप दे देंगे. अर्पित, आप थोड़ा सबके साथ शेयर करेंगे कि मुस्कान के सपोर्टेड वर्क सेंटर में जहाँ पे ये दिया भी बनाया जाता है और भी जैसे ईशना ने बताया काफी सारे यूनिट्स हैं, तो उनमें कितना काम किया जाता है, कितना प्रोडक्शन होता है? कैंडल्स में तो 40,000 पैकेट्स होते हैं. 40,000 पैक. दिया मेकिंग में जो दियाज होते हैं उनमें 35,000. ओके. और जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं जिनको इंक्लूड करते हैं हम ऑफिसेस या गिफ्ट रैप के लिए, उसमें 20,000 होते हैं. ओके. और देयर आर 10,000 मसाला पैकेट्स. ओके. और भी कुछ बनता है? Yes, there are plenty of things here. होम डेकोर के लिए हम 3500. होम डेकोर की भी 3500 जितने बनाते हैं. बेकरी आइटम्स को हम 35,000. ओके. ये आइटम्स भी 35,000 Yes, ma'am. दी है. So Yes. wow, so much of production. So कितना? About 35 to 40,000, 40 lakhs annually.
35 to 40 lakhs annually. Yes. बनाते हैं? Yes, ma'am. Yes, but So आप भी absolutely. उनकी मदद कर रहे हैं आजकल? Yeah, India wrapping. या रैपिंग में आप भी मदद Yes, कर रहे ma'am. हैं? इसके अलावा अभी आप मुस्कान में कौन सा काम सीख रहे हैं? About computers, which is known as Gunjan software, in which data of each and child has been registered, including family details, disability details, and intake form. And what is this software called? This software is known as Gunjan. गुंजन सॉफ्टवेयर में आप सारे स्टूडेंट्स का डेटा फीड करते हैं. Yes, ma'am. Okay, that's really nice. Yes. Thank you so much. Thank you, And अब ma'am. मैं हैंड ओवर करती हूँ with ध्वनि को to conclude this panel discussion. In the end, I wish to highlight the messages given by our very own advocates. First one is, with right adaptations and modifications, simple concepts and skills can be taught to our concrete learners. Sensitive and accommodative work environment plays a major role in job retention and building friendships, which uplifts the socio-emotional well-being of our friends. And in the end, like all of us, our friends too are valued, are entitled to be treated as valued and respected members of the society. Thank you. Thank you friends. Thank you. तो हमारी मुस्कान के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने एक फिल्म बनाई है. इसका टाइटल है मुस्कान, एन इनक्रेडिबल जर्नी. Through this film, we have tried to briefly capture our 40 years of journey, the ethos and culture which has brought us to today's Muskaan. I would like to share a quote here that exemplifies the spirit of Muskaan. The most authentic thing about us, the human, is our capacity to create, to overcome, to endure, to transform, to love, and to be greater than our challenges. So we screen our film. It is 2022 and we are celebrating 40 years of Muskaan. It has been an incredible journey. From a tiny room to a beautiful building, from 3 trainees to 200, from 2 teachers to 40, but always, always infused with respect, compassion and transparency. Our learnings over the past 4 decades have been wide, deep, and very often startling. Our students have shown us how much farther they can go, well beyond our expectations. People with intellectual disabilities think, feel, dream, and aspire like all of us. And like all of us, their emotional well-being is central to their growth. They deserve a life of dignity, where they are loved and valued,
for who they are. Our aim is to empower them with the skills that will give them a life of fulfillment and dignity. Our mandate is to work towards a time when the world will replace the word disability with diversity. So, what is Muskaan? Let us listen to a few voices from people who have been the friends of Muskaan going back 40 years. Dr. I.C. Verma was at the All India Institute of Medical Sciences. When I started at All India Institute of Medical Sciences as a young geneticist, I used to get many parents bringing their children with Down syndrome. So, and I found that I could, as a medical person, help only to a limited extent. How to bring up the child, how to manage the daily affairs, the parents had to do it themselves. And I realized that it would be very good to make an organization of the parents. The key element was to find the right people to lead the organization. So we found Dr. Shantiji. She was a real leader, and she had this congenial personality, taking everybody with her. What struck me right from the beginning, that how much social prejudices and unfair kind of judgment that we often carry for others, I realized that those kind of things can impoverish some people's lives to such an extent, and that made me feel a sense that there is so much injustice which is happening to children and adults with intellectual disability. Now, often we talk about these things, but somewhere in my conscience, it was emerging enough of talking. Do something if you can. And then I think another very key element was the allotment of a space for starting the school. Because once that space was allotted, it was a great effort by Mr. Olak to get this space all allotted. And then there was the motive. Then there be another objective. That here is the space, now we need the money for making the building. Mr. Santosh Olak was the principal architect of the Muskaan building. When we got this land, it was undulating land. And there was a 4 meter wide, 3 meter deep gorge going through the site. We could not build into the gorge. So we should use it as it is, or we do the next best thing, we widen the gorge and use that area as a lower area of the Muskaan. That also helped us by providing a ramp, making 2 floors easily approached for anybody who has a problem walking and things like that. For the construction of the building, a substantial proportion of the funds came from our friends in the US. Yeah, so we would visit when I was younger, and then turned 25, I started doing fundraisers myself and involving my group of friends, and started to bring awareness that way. And we would, we throw a party essentially, but then we would also sell like the dias and the paper. Shanti's and I teamed together and said, hey, let's tell them what it's all about. Maybe that'll make them change their minds. So we hosted a fundraiser at my place, and the presentation was primarily given by Poonam, and my daughter Shalini also contributed to it. And she presented some facts, some figures, some videos, which was an eye-opener to everybody. All our training programs have been devised by our own research and evolution. Mrs. Neerja Pandit came on board to teach cognitive skills to our trainees. Language and communication was the base through that we worked. That is the only thing we could reach out to the child and get your feedback and understanding. So that was the biggest tool which I named it as
creative cognitive language development. Along with life skills and vocational skills, we teach cognitive skills, which focus on comprehension, reasoning, conceptual learning, communication, and problem-solving skills. After training, students are placed in our work units, where the teachers are often supported by volunteers. Mrs. Neelam Malhotra adapted the skill of making pickles and taught it to the trainees at Muskaan. My active involvement with Muskaan started around 2005 when I shared my mother's lemon pickle recipe with the Muskaan team, and I worked in their kitchen developing the product. So we did work on the recipes and methods to suit their capabilities, and we did customize some of them, but I was surprised, really pleasantly surprised to see the results. They picked up very fast and taught me a lot. The backbone of Muskaan is its team. Teachers, support staff, volunteers. This is a surprisingly ego-free ecosystem where collaborative teamwork flourishes without any power struggles. Mrs. Chitra Rajagopal came to Muskaan as a volunteer and taught yoga and music. So we actually ran also an orchestra for some of the performances where each one was given some kind of instrument which they could play, but the rhythm had to be kept in mind. And interestingly, there was a trainee who had behavioral issues, and it was wonderful to see that with percussion, with just some rhythm, his behavior changed for the better. And he was calm through the day. The greatest achievements, I think, the way they handled COVID with online training, that's why I feel Muskaan always re-engineers itself, you know. Any problem is seen as an opportunity. Also employability. Finding corporates or other organizations that can employ Muskaan trainees. Ms. Aradhana Lal is with Lemon Tree Hotels, who have employed many Muskaan trainees. When we decided to go into the intellectual disability space, in fact that was my personal assignment, we realized that we have to go back to the drawing board and start all over again from what is this disability all about? What are the requirements of a person with an intellectual or developmental disability? How shall we integrate them? How shall we train them? And most importantly, how shall we get the rest of the team to be ready for them? With the help of Muskaan, in fact, we understood that the way to train them would be through demonstration and role play. And the outcome is clear. We've got boys and girls working with us for 7 years, 8 years. And it's not like they're hanging around, not at all. The team members are asking for them. And for 2 years due to COVID, they were not at work because the risk of COVID was too high for them, especially Down syndrome. When they came back after 2 years, by then the managers had already asked more than 20 times that when are they coming back, when are they coming back? And they're all back and they're working so well. On the second day, the managers said, my God, it doesn't even look like these people were away for 2 years. Like, it's amazing. We continue mentoring our students even after they are placed in mainstream organizations. We were conducting online sessions for mainstream employees and our other students during COVID times to provide various learning inputs. Muskaan partnered with the Skill Council for People with Disability to develop standardized job roles for intellectual disability, which will be used pan-India. Mr. Ravindra Singh is the CEO of the Skill Council for People with Disability. Skilling of intellectually disabled individuals is no different as compared to skilling of anybody else. So the methodology of training of these individuals has to be more designed towards how an individual learns. And same thing applies to a person with intellectual disability. So I'd like to really congratulate Shanti Olaji and her team for Muskaan completing 40 years of their wonderful work that they have been doing. They have been the backbone of skilling of people with intellectual disabilities for years now, working with industry, with government. We've been able to roll out some of international projects in collaboration with Muskaan. So they're doing a brilliant job, and I'd really like to thank them for that. And we hope this association continues in the future. As a landmark initiative, we set up an assisted living facility in 2012, which runs like a home away from home. What I like when I visited is that everybody seems happy. They are all in a happy mood, talking to each other, collaborating with each other.
helping each other. So that's very important. There is no rancor or anything of that type. Based on our learnings, we have a few messages for society. Do not underestimate the capacities of persons with intellectual disability. Provide appropriate education, training, and employment opportunities for them. Create meaningful roles everywhere for them, including at home, and treat them as adults and not always as children. Muskaan is a professionally run, joyful place, just as the name suggests. It is a place where dreams and aspirations are realized. A place where magic happens. Muskaan, towards a life of dignity. So Muskaan has brought up this film and marking its 40 years of journey. We have also brought up a book titled Muskaan, An Incredible Journey. To release this book, I invite Dr. Vinita Agrawal, Dr. Shanti Order, and Mrs. Shalini Sinha to come on the stage. Ms. Shalini Sinha, I would invite you to give a brief introduction about this book. She is the president of Muskaan. She is on the executive board of several NGOs, and also she is India country representative of an international network called WIGO. She is working for women in informal employment. She is also a mother of a son with Down syndrome. I request her to share a glimpse of the book and lead the ceremony. Thank you so much. 40 years, an incredible journey. Mananiya Mukhya Athithi, Dr. Agrawal, guests of honor, Mrs. Shija Nair, Dr. I.C. Verma, and Mr. Ravinder Singh ji. Thank you for being here with us. Thank you to all the parents and all the students who are here with us to celebrate this big occasion, 40 years. एक अविश्वसनीय, एक अद्भुत ये जर्नी है, यात्रा है, 40 साल की, एक लाइफ टाइम होता है 40 साल. और क्या मैं सोचती हूँ, मैं पूछती हूँ शांति जी से, जब 80s में आपने शुरू करा था, आपने सोचा था हम ये सेलिब्रेट कर रहे होंगे? और आपने कैसे सोचा था कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे होंगे? ये एक जो हमारी यात्रा है, उसके हमने आपको एक ग्लिम्स दिया फिल्म में, और कुछ हमने कैप्चर करने की कोशिश करी एक किताब में, which is about this journey. The book is written by Dr. Shanti Alak, who is also the founder of Muskaan. इस किताब में हमने जो लिखा है वो बताया कि एक आइडिया से एक मूवमेंट कैसे बनता है, एक बेसमेंट से एक बिल्डिंग कैसे बनती है, और एक हमारे स्टूडेंट की गाइडेंस में माइंड्स और कम्युनिटीज कैसे बदलते हैं, परसेप्शंस कैसे बदलते हैं, कैसे डिसेबिलिटी में एबिलिटी दिखने लगती है. ये जो हमारी 40 साल की यात्रा है, ये उस यात्रा को डॉक्यूमेंट करा है हमने यहाँ पर, और बहुत अलग तरीकों से करा है. हमने जो हमारे चैलेंजेस आए, जो चेंजेस आए, उनको बहुत ओपनली इस किताब में लिखा है. जब हमने अपने स्टूडेंट्स से के बारे में जब हमने सोचा, तो हमने कहा कि फोटो डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, जिससे कि उनकी हर एक सोशल और इमोशनल जो उनकी जो चेहरे पे झलक है,
खुशी है, एक बहुत डीप इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको कैप्चर करेंगे। इस किताब ने उसको कैप्चर करा। हमने जब टीचर्स से पूछा कि इस 40 साल में आप क्या करना चाहेंगे, तो टीचर्स ने हमें बताया कि they want to tell us about how their life has changed. They didn't tell us about how they have changed their lives. They told us our lives have changed because we work with people with special needs. So we documented that. एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने तो एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी ये 40 साल की हमारी उपलब्धियों के ऊपर और ये जर्नी के ऊपर, हमने उसको लिखा। ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारी किताब है, ये डॉक्यूमेंट करती है केवल एक जर्नी को नहीं, ये डॉक्यूमेंट करती है एक अप्रोच को, ये डॉक्यूमेंट करती है एक कमिटमेंट फॉर बेटर लाइफ, फॉर अ लाइफ विद डिग्निटी, अ डिसेंट लाइफ विद डिग्निटी, a commitment to always showcase ability, चाहे वो बाहर जाके काम करने के लिए हो या यहाँ पे काम करने के लिए हो। A commitment for decent adulthood, which is everybody's human right. और वही हमने इस किताब में अपनी जर्नी में लिखना चाहा। आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो, जैसे आपने फिल्म में भी सुना, शांति जी ने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन से हुआ। आज 40 साल में हम जो देख रहे हैं, 66 स्टूडेंट्स आपने सुना जो कि मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट में हैं। किसने सोचा था 40 साल पहले कि हम ये कर पाएंगे? ये आज हम उसका त्यौहार है, ये एबिलिटी का त्यौहार है, ये आगे बढ़ने का एक अप्रोच का त्यौहार है। ये हम 40 साल वो मांग कर रहे हैं। आज हमने इतनी तैयारियां करी, इतना अच्छा मौसम आपके लिए ऑर्डर करा, फुल मून को भी बुलाया था, लेकिन ये एविएशन वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो जब हम 50 साल सेलिब्रेट करेंगे तो हम पहले एविएशन वालों को अवेयर करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। सो दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। So going back to what we have tried to document in this book, we have also tried to show how vocational training is a tool for empowerment. It is a tool for people to be empowered, to be themselves, to be confident about themselves. And it is also a journey in which many people have walked together. This book is written by Shanti ji, but she says in the book that this is a journey in which many people joined. And today, as it was from the first day that Muskaan was conceived, there is a key principle on which Muskaan runs. And that key principle are two. One, we are always guided by what our students want, need, and what they can do. And second is the partnership between staff and the parents. Parents और staff की जो relationship है, वो बड़ी गहरी relationship होती है। और मुस्कान की जो बुनियाद है, वो इस relationship पे बनी हुई है। Staff कितने भी committed हों, और हमारे पास बहुत committed staff है, वो कुछ बदलाव नहीं ला सकते अगर parents का साथ नहीं है। और पेरेंट्स कितना भी बदलाव लाना चाहें, अगर उन्हें गाइडेंस नहीं है, उनका हाथ पकड़ के उन्हें कोई नहीं सिखा रहा है, तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, जब पेरेंट्स और स्टाफ मिलते हैं, जब स्पेशल एजुकेटर्स और स्टाफ मिलते हैं, जब पीपल हु आर गाइडिंग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिल के काम करते हैं, तो फिर हम ये एविएशन वालों को भी चेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तब तो आसमान हमारा है। और ये जो 40 साल हैं, ये उसी तरह की सेलिब्रेशन है। और मैं केवल यही कहना चाहूँगी एंड में कि जो 40 साल में हमने सीखा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। डिसेबिलिटी में तो एबिलिटी दिखती है, हमें डिसेबिलिटी तो दिखती नहीं है। और हमारा जो एक अप्रोच है टुवर्ड्स वोकेशनल ट्रेनिंग, टुवर्ड्स adulthood, that is an approach which
which can be shared with the, and we are sharing with the whole world, of how people with disability are so capable of leading a decent and a dignified life. And it is this journey that we have captured in this book. So, मैं इस किताब की इनॉग्रेशन के लिए किताब अगर लाई जाए यहाँ पे, तो मैं चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगी इस किताब की कॉपीज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को दी जाए, प्लीज़. Muskaan, an incredible journey. Thank you. मैं शांति जी को इनवाइट करना चाहूँगी. शांति जी, आप कुछ शब्द बोलें इस किताब के बारे में, but more than anything इस जर्नी के बारे में. Thank you so much, Shalini. And मैं आज के अपने सभी मेहमानों पर, और खासकर डॉक्टर विनीता अग्रवाल, मिसेस शीजा नायर, डॉक्टर आईसी वर्मा एंड मिस्टर रविंद्र सिंह, कि आपने हमारा इन्विटेशन को स्वीकार किया और हमें एक वो रास्ता, आपने एक कनेक्ट आपसे आगे भविष्य में हम करना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली मुस्कान को उसी चीज़ में सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और काम तभी आगे बढ़ेंगे. शालिनी ने इस जर्नी के बारे में बोला, एंड कुछ महीने पहले जब से एहसास होना शुरू हुआ कि ये 40 साल होने वाले हैं, वी मस्ट डू समथिंग, और एक मन में तमन्ना उठी कि इसको कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट करने के लिए सोचा अच्छा कुछ लिखा जाए, और दिमाग में उसी वक्त एक टाइटल मेरे दिमाग में आया, स्पॉन्टेनियसली आया, that it has been an incredible journey. And जब मैंने और ज़्यादा उसके अंदर सोचा कि क्यों मुझे लग रही है इतनी incredible journey, तो मैंने रियलाइज किया कि इस पूरे अनुभव हमारे बच्चों ने, हमारे साथियों ने, हमारे इतने सारे सपोर्टर्स, फ्रेंड्स, सबने किस तरह से उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी, एक एक कदम पे किस तरीके से लोग सामने आए हमें हेल्प करने के लिए, that was truly an amazing experience, and I would have never understood those things unless I was with Muskaan all these years. So it has been an incredible journey. Also in another aspect, from disability to diversity, ये जो पर्सपेक्टिव में चेंज आया, और इस चेंज को लाने के लिए हमारे बच्चों ने वो चेंज लाया. आई एम सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देम कि उन्होंने आंखें खोली कि हम किस तरीके से अपने दिमागों को, अपने परसेप्शंस को बंद रखते हैं और लोगों की ब्यूटी नहीं देख पाते. जैसे मुझे फिल्म में दिखाया, बहुत कुछ सीखते हैं. मैंने एक कुछ ऐसी चीज अपने बच्चों में देखी
और ऐसी चीज सीखी कि मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसके बारे में। मैंने उनके 2 पहलू देखे और बहुत नजदीक से और बहुत सारे बच्चों में, मतलब सारे नहीं, हर एक बच्चे में देखा। और वो पहलू था कि अगर हम उन्हें कुछ भी सिखाते हैं जो मीनिंगफुल हो और उनको मौका देते हैं उसको सीख के कर पाने का, तो उनकी जैसी कर्मठशीलता, the dedication to work, dedication to learning, इतना enthusiasm है सीखने के लिए। और हम और आप थोड़े से एफर्ट करके अगर नहीं सफल होते हैं तो हमें डिस्करेजमेंट होना शुरू रहता है। हमारे बच्चों में ईश्वर ने ऐसी खूबी दी है, डिस्करेजमेंट नाम की कोई चीज़ उनकी जहन में नहीं होती। सो वो सीखना चाहते हैं और इतने डिसिप्लिन्ड वर्कर्स होते हैं, इतने जिम्मेदार लोग होते हैं। आपको आराधना जी की बात से पता चला होगा और मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रही। आप 1 दिन 2 दिन आके देखेंगे हमारे बच्चों को काम करते हुए, आप रियलाइज दैट वाज वन थिंग। एंड ऑफ कोर्स एज मुस्कान स्टार्टेड, हमने ये सोचा कि एडल्ट्स के लिए कुछ भी नहीं है हमारे समाज में, सो वी हैव टू डू समथिंग। एंड कुछ में साइकोलॉजी की मेरी बैकग्राउंड और कुछ मेरे बेटे ने बहुत सिखाया मुझे, और रास्ता खुलता चला गया। और मैंने ये देखा जो मेरे बेटे ने सिखाया वो मेरे सारे बच्चे मुस्कान के खूब मजबूती से मुझको उन्होंने उसको कंफर्म किया और सिखाया। बट देयर इज वन मोर एस्पेक्ट। हमारे बच्चों का व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत है। शायद अजीब लगता होगा कुछ लोगों को ये बात सुन के, पर जिसको हम इंसानियत का सच्चा स्वरूप बोलते हैं, उनमें अनकंडीशनल लव की कैपेसिटी, इट रियली फिल्स योर हार्ट विद ग्रेट जॉय एंड अफेक्शन। दे आर बहुत सीधे सच्चे साफ दिल के लोग हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत सेंसिटिविटी है और कोई कंपटीशन से उनका मतलब नहीं है, अपने मजे में काम करते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ें उनको जिंदगी में खुशियाँ दे जाती हैं। और कई बार मैं सोचती हूँ हम ये तो सीखें इनसे। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स थे, ये जैसे जैसे हम समझते गए, हम अपने प्रोग्राम्स को निखारते गए कि we have to work on those skills which they don't get opportunity either in school and often not even at home. Unfortunately, पेरेंट्स के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, नहीं तो जिस तरह की परवरिश की जा सकती है उससे वंचित रह जाता है। सो इन्हीं सब नीड्स को देखते हुए ये ऐसा लगा कि अब इसमें जो भी ज़रूरत है हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बढ़िया बनाने की, उसको हमें करना ही करना है। और ये सारे जो प्रोग्राम उन्होंने हमें सिखाते गए और हम उनको ढालते गए अपने स्ट्रक्चर में, और ये सारे बड़े सक्सेसफुल प्रोग्राम हैं। एंड व्हाट आई फील इज कि हर बच्चों, हर परिवार तक अगर ये पहुंच सके, जो मुस्कान या हमारी जैसी संस्थाएं और संस्थाओं ने किया है, वो तो इट्स लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन। बट बहुत कुछ है हमारे पास लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट बीइंग एन एनजीओ वी कांट स्केल अप टू दैट एक्सटेंट। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही सुहावना अवसर है कि आप लोग हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं कि आगे कैसे इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाया जाए। एंड ये सब बड़ी डूएबल चीज़ें। हमने किताब में भी लिखा है कि हाउ द गवर्नमेंट कैन हेल्प, एंड विदाउट मच मनी
बच्चों की कैपेसिटीज को समझा नहीं जाता, बहुत अंडर एस्टिमेट होते हैं और वो एहसास बराबर दिलाते रहते हैं कि इतने खूबसूरत इंसान होने के बावजूद क्यों उनके साथ इतना इनजस्टिस जानकर कोई नहीं करता, बट इग्नोरेंस की वजह से. So this has been an incredible journey from disability to diversity. I never thought that I will make that kind of a shift, or the life will bring that kind of a shift in my perspective, where I enjoy their unique individuality, their unique personality. They are the dearest to our heart. So ये जो change है disability to diversity, ये जिंदगी को बदल देती है. And that is why I'm so full of thanks, gratitude, appreciation for our young friends. हम उन्हें friends बोलते हैं मुस्कान में. For opening our eyes to some of these very basic, fundamental human facts. And हम ये कहेंगे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं काम करने के लिए, इस रास्ते पे आगे चलने के लिए. एंड अगर मतलब ये तो आप ये देख लीजिए कि इस तरह की सर्विसेज से 5% लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रही है. बहुत लंबा काम है हमारे हम सबके लिए. एंड ये सब कभी भी नहीं जाएगी और ये सब कभी भी नहीं संभव हो पाता अगर आप सब लोग, कुछ लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, एंड उन लोगों ने बिना किसी हिचक के इतना विश्वास किया हमारे ऊपर और हमें वो मौका दिया कि हमें कम से कम कुछ बेसिक रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट ना लगाना पड़े ताकि हम अपने आप को फोकस कर सकें अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारने. So with those words I will end my sharing, but I must say that somehow Muskaan has overtaken my being. And I do not know where is my personality and where is Muskaan in all this journey. Thank you. थैंक यू शांति जी. मैं इस किताब में से कुछ पढ़ना चाहूँगी. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द फर्स्ट व्हेन दिस बुक स्टार्ट्स एंड आई विल रीड इट आउट टू यू. Muskaan's journey is also my personal journey in life. I don't feel like segregating the two because life-changing situations and their demands on us change us in unimagined ways. Shanti ji is writing this. Muskaan and its team, including myself, have grown together. What follows in these pages are glimpses into a human journey. In pursuit of our goals and aspirations, the human experiences often get eclipsed, whereas it is these experiences alone which drive us on our path in life's journey. It is our learning and insight which are our real gains. This is the first paragraph of this book which documents this incredible journey. 40 साल जो हम आगे बढ़े उसमें हमारी लीडिंग लाइट थी शांति जी. उसमें हमारी इंस्पिरेशन, the person who was leading us, the leader, the visionary, the person who had the most amount of faith, जो सबसे आगे बढ़ के चल रही थी. शांति जी के लिए मैं हर समय ये कहती हूँ कि शांति जी हम सबसे बहुत यंग हैं क्योंकि यूथ का मतलब होता है डायनामिज्म, सम काइंड ऑफ ब्रेवरी कि नए नए प्रोजेक्ट्स करें और उसके लिए कोई ये नहीं कि चलेगा कि नहीं.
और मैं ये भी कहती हूँ कि उसके साथ साथ वो शायद हमसे सबसे ओल्डर हैं, बिकॉज उनमें वो जो विजडम है वो है, और उसमें जो उनका जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, वो है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितनी इंटरमिंगलिंग है मुस्कान की जर्नी और शांति जी की जर्नी में। उन्होंने केवल एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, एक फैमिली बनाई है जिसके हम और आप और हमारे बच्चे मेंबर्स हैं, जिसका उन्होंने एक कैडर ऑफ लीडर्स और टीचर्स बनाया है जो कि हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। So, I want to take this opportunity to honor Shanti ji on this occasion of 40 years of Muskaan. So I want everybody to please honor Shanti ji. और शांति जी को ऑनर करने के लिए, yes, thank you, she deserves a standing ovation. So शांति जी को ऑनर करने के लिए एक डेलीगेशन आएगा स्टेज पे। वो डेलीगेशन रिप्रेजेंट करता है मुस्कान के 3 पिलर्स, 3 स्तंभ है मुस्कान के। सबसे पहले हमारे बच्चे, our friends, और हमारे साथ हैं मुकुंद गंजू। मुकुंद आप CBRE में काम करते हैं, और जो कि एक मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी, और मुस्कान का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। 1 मिनट में ऑटो पे बुला लूँ शांति जी। और हमारे साथ हैं एक टीचर्स का डेलीगेशन। उस डेलीगेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट को मृदुला साकले जी। मृदुला जी कंसल्टेंट हैं और फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मुस्कान की। उस डेलीगेशन में हैं अरविंद सर। अरविंद सर मुस्कान के साथ 23 साल से काम कर रहे हैं। वो एक जौहरी के जैसे हैं जो कि हर एक नग को जो उनके पास आता है उसको कार्व करके उसकी ब्यूटी आपके सामने करते हैं। और फाइनली जो तीसरा स्तंभ, 3rd पिलर है मुस्कान का, वो है पेरेंट। और पेरेंट में हमारे साथ हैं मिसेस घोषाल। मिसेस घोषाल के 2 बच्चे हमारे बच्चे हैं, और मिसेस घोषाल ने बहुत सालों तक मुस्कान में वॉलंटियर करा है। वो मुस्कान की स्टाफ भी रही हैं, और वो रिप्रेजेंट करती हैं वो सब जो कि एक पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है मुस्कान में। मैं अरविंद सर और मृदुला जी से बोलूँगी एक शॉल प्रेजेंट करें शांति जी को, प्लीज़ खोल के पहनाइए। शांति जी आप बहुत पीछे हैं। With this team, I tell you, what a great team we have. मैं सच में ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब, मतलब इतनी अच्छी टीम जैसे ईश्वर भेजता रहा अच्छे अच्छे लोगों को, and which is absolutely true. There is no exaggeration. Thank you very much. थैंक यू शांति जी। बहुत तहे दिल से हर एक पेरेंट की तरफ से मैं शांति जी का खास शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदली है। और वो केवल एक बच्चे की माँ नहीं है, बल्कि एक परिवार की हेड हैं, और हर एक बच्चे की माँ है, जिसको कि हम डिसेबल्ड कहते हैं या इंटेलेक्चुअली चैलेंज कहते हैं। सो थैंक यू शांति जी। और अब मैं मैडम चीफ गेस्ट से बोलना चाहूँगी कि वो कुछ शब्द बोलें। Good evening, everyone. Dr. Verma ji, Dr. Shanti ji, my colleagues from NSDC and Sector Skill Council, ladies and gentlemen.
it is a great pleasure for me to be part of this great journey of Muskaan, of completing 40 years in this field. And after, I'm really overwhelmed with what I have seen. और जो अभी मैंने सुना, मैंने फिल्म देखी, उस सब से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ. इनफैक्ट जब मैं यहाँ आई, I would admit कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा यहाँ पर आना, यहाँ पर उनका इनवाइट करना मुझे. जैसे कि एक अलग सी दुनिया के दरवाजे मेरे लिए खुल गए. और so I would say that this is not something where I can tell you anything. It is something where I have come to learn. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरा सपोर्ट, मैं जिस भी तरह सपोर्ट कर सकती हूँ वो हमेशा आपको मिलेगा. And I will always be there to reach out to you. And I can see that यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, they are all holding on to some inspiring story of patience, courage and determination. And so they are our teachers and that is where we can learn a lot. और जो मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी जब सीमा जी मेरे ऑफिस में मिलने आई, मैंने तब भी कहा और मैंने शांति जी को भी ये बताया that I was really touched by her line of that disability is a social construct. Nature has given us only diversity. और मैंने यहाँ आने से पहले बहुत कुछ पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़े. मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के सुने जिसके बारे में मैं थोड़ा जान पाई और मैं इस सच्चाई को समझ पाई कि जो वो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक है. क्योंकि हम डिसेबिलिटी उसको कहते हैं जब हम एक मापदंड यूज़ करते हैं जिसको हम परसीव करते हैं कि वो नॉर्मल है क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं. और जब वो मापदंड हम लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि और भी कुछ गिफ्ट है, और भी कुछ कैपेबिलिटी है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं और उसको हम इग्नोर कर देते हैं. सो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ वाई अगर मैं सोचूं कि पहले एक नया टर्म कॉइन किया गया था डिफरेंटली एबल्ड, एंड उसको जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, कि दे आर एक्चुअली डिफरेंटली एबल्ड, दे हैव अ डिफरेंट पोटेंशियल जिसको हमें टैप करने की ज़रूरत है. जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो आई केम अक्रॉस अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी बाय डॉक्टर फ्रैंक हेडू फ्रॉम कैनेडा, who has been a pioneer in special Olympics. तो वो उन्होंने ये लिखा कि उनकी इनिशियल फाइंडिंग थी कि जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनका फिजिकल फिटनेस जो है वो अपने पीयर ग्रुप से ऑलमोस्ट 50% कम था. और लोगों का ये मानना था कि ये इसलिए है क्योंकि उनमें कोई डिसेबिलिटी है. और इसी सोच को उन्होंने अपनी रिसर्च से चैलेंज किया और उन्होंने दिखाया और प्रूव किया वर्ल्ड को कि अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनको सही तरह की ट्रेनिंग दी जाए तो वो इक्वली सबके साथ कम्पीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन. एंड इन फैक्ट स्पोर्ट्स कैन प्ले अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन देयर लाइव्स. सो ये एक अपॉर्चुनिटी की बात है, इक्वल प्लेइंग फील्ड देने की बात है. सो इस तरह से ओलंपिक्स का सेशन शुरू हुआ 1968 से और वो कहते हैं कि आज 170 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और 4.9 मिलियन बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एंड ये सिर्फ यही नहीं दिखाता कि खेल के फील्ड में, बट इवन इन द प्लेस, वर्क प्लेस, इन कम्युनिटी, इन स्कूल्स इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट पीपल विद इंटेलेक्चुअल challenges. Unfortunately, हमारे कंट्री में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन पर्टिकुलर एंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को अभी भी बहुत निगलेक्ट, दे आर अ निगलेक्टेड लॉट. तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे मुस्कान ने उन्होंने बताया कि वो 200 बच्चों के साथ काम करती है, ऐसे बहुत सारी और भी NGOs होंगी जो इस फील्ड में काम करती हैं, लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा है. अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो ऑलमोस्ट 2.2% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज़ सम काइंड ऑफ, दे आर अफेक्टेड विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, और उसका ऑलमोस्ट 6% इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है. और अगर वर्ल्ड में देखें तो ऑलमोस्ट 2% पॉपुलेशन है. तो अगर हमको एक्चुअली मीनिंगफुल चेंज लाना है तो उसके लिए ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, बट सोसाइटी एट लार्ज के साथ काम करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले जो मैं सोचती हूँ कि एक
वाइडर कैनवस के लिए अगर आप पेरेंट्स की बात करें, मैं बहुत इस चीज़ से प्रभावित हुई। मेरे दिमाग में ये सोच आ रही थी और इसको मुस्कान ने एड्रेस किया कि वो पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस बाय द पेरेंट्स विच इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करने में, बच्चों को कैसे हैंडल करना है उस ट्रेनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और दैट इज़ वाई we find that many children, they ultimately may end up in the couch of their parents' homes because nobody knows how to handle them, and they remain unheard, their potential remains unheard. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा sensitization और awareness ज़रूरत है। उसमें डेफिनेटली NGOs का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन येस गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अर्ज करना चाहूँगी कि जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और मैं शांति जी से बात कर रही थी कि रिसोर्सेज की कोई ऐसी कमी नहीं है, बिकॉज उस डिपार्टमेंट का बजट है, काफ़ी बजट है और सब वेल मीनिंग लोग हैं, मगर काफ़ी बार क्या होता है कि द इंटरवेंशंस मे नॉट बी एज वी वांट द इंटरवेंशंस टू बी। तो उसमें NGOs एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं बाय गाइडिंग, बाय असिस्टिंग एंड सपोर्टिंग the efforts of the government. So और एक और भी इशू है जो मैं आज इनके साथ बात कर रही थी कि बहुत तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो somehow जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके साथ ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी बार लोग नहीं देते हैं, और दूसरी और चीज़ों के साथ काम करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम अपनी अप्रोच को इंक्लूसिव बोलते हैं। नॉट दैट कि वो कोई कम है, उसको भी करने की ज़रूरत है, बट कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम सभी डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करें। तो उसमें मुस्कान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर गवर्नमेंट के साथ काम करें तो डेफिनेटली वी कैन मेक अ डिफरेंस, ताकि हम उसको स्केल अप कर सकें। सेकेंड पार्ट जो आपने भी कही कि हमको मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, इवन पढ़ाई के लिए मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, जो बच्चे मेन स्ट्रीम हो सकते हैं। उसके बारे में मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, वो ये कहती है कि जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो बहुत जल्द आप ये चेंज देखेंगे कि एक स्कूल में अगर बच्चा फिज़िक्स कर रहा है तो उसके साथ फैशन स्टडीज़ कर सकता है, उसके साथ हिस्ट्री कर सकता है, कोई भी कोर्स कर सकता है। सो वोकेशनल कोर्सेज जो हैं बहुत बड़े स्केल पे ऑफर होंगे स्कूल्स में, और बच्चे वो कर सकते हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी समाउ वी आर ऑब्सेस्ड विद एकेडमिक्स। अगर बच्चे ने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया, इट इज एंड ऑफ द रोड। सो दैट हैज़ टू चेंज, दैट माइंडसेट हैज़ टू चेंज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब ये चेंज जो है बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये आने वाला है, एंड आई एम श्योर हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो एक तो ये है। दूसरी बात, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सेल्फ डिस्कवरी फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज चाइल्ड इज दैट ऑफ बिल्डिंग लाइफ स्किल्स एंड बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स। ना अगर स्किल्स की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, DDU-GKY, इस तरह की काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और काफ़ी बजट, काफ़ी खर्चा इसके ऊपर होता है, और हर पॉलिसी में लिखा भी जाता है कि उसको इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, मतलब वो जो लिखा जाता है उसको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। रविंदर सिंह जी यहाँ पर हैं जो कि उसके CEO हैं, और वो यही सोच के बनाया कि दे विल बी द वॉइस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और उनकी स्किलिंग में वो मदद करेंगे। तो वो इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो इस तरह के कोर्सेज बनाते हैं जिनकी डिमांड है, जो हर किस्म की डिसेबिलिटी के बच्चे स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से सोचकर वो कोर्सेज को डेवलप करते हैं। सो अभी उनके 4 जॉब रोल्स कोर्सेज जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, और वो और उन्होंने मुझे बताया अभी कि और 10-15 कोर्सेज वो लाने वाले हैं। तो वो इनमें फिर ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद उनका असेसमेंट कराते हैं, और एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन भी कराते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं DG NSDA थी 2019-20 में, तो जो ये कोर्स बनाते हैं उसका एक टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट में मैंने पहली बार एक प्रश्न डलवाया कि जब आप कोर्स बना रहे हैं तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि क्या ये कोर्स
किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई इसमें ट्रेनिंग कर सकता है, कौन सी डिसेबिलिटी वाला बच्चा ये ट्रेनिंग कोर्स कर सकता है। आइडिया ये था कि जब कोई भी ये कोर्स डेवलप करे, इस बारे में कम से कम सोचे तो सही, और जब वो इंडस्ट्री वैलिडेशन के लिए जाएं उस कोर्स का, तो ये सवाल वो इंडस्ट्री से भी पूछें, ताकि इंडस्ट्री भी सोचे कि हाँ, हम किन बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते। और मैंने ये भी मैंडेटरी किया कि जब भी हमारा इंडस्ट्री के साथ कोई बातचीत हो इस विषय पे, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो, तो वहाँ पे हमारी ये सेक्टर स्किल काउंसिल रहेगी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी रहेगा, ताकि वो अपने कंसर्न्स को वॉइस कर सकें और इंडस्ट्री को इसके बारे में सोचने पे मजबूर करें। सो ये भी एक चीज़ है जो हमने एक फैसिलिटेट किया है, मगर दिस इज समथिंग विच द सेक्टर स्किल काउंसिल and the department will have to take up this opportunity and actually use it effectively. So that is another thing that I wanted to tell you. Then one last thing that I wanted to tell you about was कि हमने बहुत सारे नए कोर्सेज अभी डेवलप किए हैं, जो कि नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, क्योंकि अभी मुझे बताया गया कि कोडिंग में और IT रिलेटेड में भी सम जॉब रोल्स में ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकें और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये सब नए कोर्सेज अभी डेवलप हुए हैं, जो हमारे नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको अर्ज करूँगी कि आप उनको देखें और आप SSC के साथ संपर्क में रहें, आप लोग भी देखें और सोचें कि कौन से कोर्सेज जो कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे उसको ऑर्गेनाइज करा उन सब कोर्सेज में आप लोगों के लिए। एक और चेंज जो अभी हुआ है वो ये है कि एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ रहा है, जिसकी वजह से कि अगर आप कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कोर्स करते हैं तो उसमें बच्चों को कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तो क्रेडिट्स का फ़ायदा ये होता है कि आगे अगर आपने कुछ और कोर्स करना है, जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि बताया कि उन्होंने एक के बाद एक डिफरेंट कोर्सेज किए, तो उनको एक कोर्स से क्रेडिट मिलेगा जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं आगे जाने के लिए। सो ये भी एक चीज़ है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और एक जो दूसरा चेंज आ रहा है वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। तो उसमें ये है कि पढ़ाई भी आप अपने पेस से कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हैं तो एक ही बार नहीं कर रहे हैं, तो आप 6 महीने करके आपको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, आप जा सकते हैं, फिर आप वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं और आप जिस स्टेज पे आना चाहें उस स्टेज पे आप वापस भी आ सकते हैं। So the last point that I want to touch upon is that after the skill training, what is most important is placement. और उसके लिए इंडस्ट्री के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है कि वो प्लेसमेंट करें। मुस्कान बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो अपने भी प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं ताकि इन बच्चों को प्लेस कर सकें। और इंडस्ट्री वाले अगर यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा कि इवन लेमेंट्री वालों ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी, उस पोटेंशियल को रिकग्नाइज कर रहे हैं और उनको एक राइटफुल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, सो दैट दे कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ, दे कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग गेट्स दैट rightful place. So in the end, I would just like to say that I am really very grateful to Muskaan that one, that they are doing wonderful work, and second, that they gave me this opportunity to come here so that I could actually learn about a new field, a new area. And as I said in the beginning, I'll always be there. Please reach out to me whenever you want. And thank you very much once again for giving me this opportunity to share my thoughts. Thank you. Thank you, Vinita ji, for enlightening us. I think I can take a liberty to share. इस जिंदगी में कुछ समझ जो आया है इन दोस्तों के साथ में रह के अपने तजुर्बे से, तो उसमें एक कोट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट जॉय एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, focus your energy on improving human dignity, human capacity
and human value. आपकी ज़िंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी जो एक व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र में चाहता है। तो आप मैं मृदुला शाक्य जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आके वोट ऑफ थैंक्स दें हमारे अपने डिग्नेटरीज को और दिवाली का शुभारंभ करें। With all due respect, we would like to thank Dr. Vinita Agarwal, Dr. I.C. Verma, Ms. Sheesha Nair and Mr. Ravinder Singh for taking out valuable time to encourage us and for celebrating our 40 years with us. We feel great pleasure to have you amongst us during this festive season. We would also like to thank our donors who have donated to develop this beautiful aesthetic infrastructure. We are also grateful to donors who have contributed to make our programs, our vocational training programs, skill development programs, life skill programs, a great success. And it was due to their contribution that we could continue with our giving our services to our students during lockdown, and we were able to support their families also. All our activities, operations and everything has been possible due to unstinted support from our EC members, our advisors, our parents, our volunteers. And we are really thankful for them to be with us since so many years. We are also supported by our friends in US, and they have been promoting our products and also raising funds for us, and we are very grateful to them. We are thankful to our employment partners for giving opportunity to our students to be a part of mainstream employment. Our bulk buyers who have been giving us support to get work for our supported work center and giving us opportunity to give employment to people in supported work center. And this also helps us in showcasing our capabilities and capacities of our friends. This Diwali Utsav and celebration cannot be completed without mentioning the different committees who have worked tirelessly to make it a success. We are thankful for their efforts. Last but not least, a big thank you to all staff and students of Muskaan. This has been a success because of their tireless efforts. And big thank you to all of you to be here, be with us during and making this occasion a memorable one. And we are streaming our program on Facebook and Instagram live, and we have 150 plus viewers right now on our live streaming. And they have joined from US, Canada, Japan, Indonesia, Australia, and we are thankful for them to be joining us and celebrating with us. I would like to invite you all now for our Diwali Bazaar and do your shopping for Diwali with us. Thank you so much for being here. Thank you.